वेलकम टू इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है आपकी। इसमें हम एक्सटेंडिंग इनविटेशंस, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग इनविटेशंस, टेकिंग लीव, इसमें हम लीव को एक्सेप्टिंग सीखेंगे, डिक्लाइनिंग सीखेंगे और इनविटेशन सीखेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है, यूनिट ब्लॉक 2 का यूनिट 1 है, जिसमें हम ये सब्जेक्ट है। इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल फंक्शंस पढ़ेंगे, इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस उसके फंक्शंस हैं ये, जिसमें हमने ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक्सटेंडिंग इनविटेशंस समझ रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंडिंग होता है हम किसी को इनविटेशन देते हैं तो बोलते हैं एक्सटेंडिंग। एक्सेप्टिंग होता है जब हमें कोई देता है तो फिर हम उसके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम डिक्लाइन करेंगे या फिर टेकिंग, अच्छा दूसरा फिर टेकिंग लीव, फिर अनदर दूसरा टॉपिक है। तो यस, अब हमने यहाँ से कहाँ से कवर स्टार्ट करना था? सर कहाँ से? यहाँ पर सर ऊपर 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 हम्म ऊपर करे बॉक्स है ना ऊपर, हाँ यहाँ से बस। यहीं से ना? Yes, sir. जी। To you, other expressions are glad to meet you, pleasure meeting you. These are not full sentences but phrases. I am pleased. Glad to meet you. It is a pleasure meeting you would be the implied sentences. This is another example of how we leave out some very common words easily understood from the context when we speak. Well, I am in a hurry. I just came to ask you, Mrs. Dhawan and Gautam. Sonali is the name. The visitor signals that he wishes to leave with the words, well, I am in a hurry. He begins stating the purpose of his visit when Bob interrupts him, commanding him to drop the formality with his wife and address her by her first name. So scroll. जी, कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये इसके नीचे से ऑल राइट से पढ़ना। जी। All right, I should be delighted if both of you and Gotham could come to my party next Saturday. Next, Bob invites Barry and his wife for the party. I should be delighted. Other expressions could be it would be lovely if, it would be great if. I'm not so sure about Sonali. You see she may have to visit her ally aunt that evening and Gotham's away at Allahabad, but I'll come. This जी is a way in which one could excuse oneself जी, of पलक जी a आपकी वॉइस थोड़ी सी लो है, थोड़ा सुनाए। invitation. So volume होगा issue. जी So explain मैंने आगे से read करोगे. So scroll. Yes. I'm sorry, my aunt has not been keeping too well lately. Apologizing for non acceptance. What a pity. I hope she gets well soon. Polite response. A river with three banks. Here are some ways of leave taking notice the polite responses by the hostels. He hasn't come yet. I think I should leave. Do sit for a little while more. You have waited for so long. He should be back any minute. Can I get you something to drink? No thanks. Did he know you were coming? No, I thought I would take a chance. I'll go now. Oh, I'll late. I'll tell him you came. Would you like to write down a message? No, I'll call later. Thanks. I must leave now. It's getting late. You have a long way to go. This call. जी। Call. नेक्स्ट अभी कौन रीडिंग करेंगे? शिवानी जी को बुला लेते हैं, ठीक है।
ये आपने यहाँ से रीड करना है. Here are some of the. Here are some ways of leave talking. Notice the polite responses by the hosts. He has not come yet. I think I should leave. Do sit for a little while more. You have waited for so long. He should be back any minute. Can I get you something to drink? No thanks. Did he know you were coming? No, I thought I would take a chance. I will go now. Oh, I will tell him you came. Would you like to write down a message? No, I will call later. Thanks, I must leave now. It's getting it's getting late. You have a lot way to go. Yes, hope you get well soon. Thanks for coming to see me. जी, मेरी वॉइस क्लियर है आप तक? टू थैंक्स फॉर कमिंग टू सी मी. अब यहाँ से कशिश जी को बुलाऊंगा. जी, नहीं पहले इसको पलक जी हैं. पलक जी आप एक्सप्लेन करोगे? जी, यहाँ से एक्सप्लेन करना है आपने. जी, यहाँ से. यस. जी, तो अभी हम इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो आपने कन्वर्जेशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से एक्सटेंडिंग इनविटेशंस हो रहा है. और अभी हमने ओरल और रिटन इनविटेशन भी दो तरीके से होता है. एक तो ओरल भी हो सकता है, दूसरा रिटन भी इनविटेशन होता है. मुझे आप लोगों की वॉइस थोड़ी सी लो सुनाई दे रही है. ठीक है, दोबारा बुलाता हूँ किसी को. उपासना जी. यस. यस सर. हाँ, अब आपकी वॉइस थोड़ी सी आई. थोड़ा सा इसको रीड कीजिएगा. टू यू अदर. सर ये ऊपर से स्टार्ट है, थोड़ा सा ऊपर है इसका पार्ट. यस सर, यहाँ से. हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके. सर एक्सप्लेन करना है. हाँ, नहीं विद रीड कर करके एक्सप्लेन कीजिएगा. विद रीड. ओके सर. एंड दैट्स माय ब्राइड, मैरिड 7 years नाउ. एंड दैट्स माय ब्राइड, ये मेरी ब्राइड है या फिर दुल्हन है. मैरिड 7 years नाउ, 7 year हो चुके हैं. प्लीज्ड टू मीट यू मिसेस धवन, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस धवन. अब इसको एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने ये किस वे में बात की है. तो बैरी इंट्रोड्यूस हिज वाइफ टू हिम, बैरी अपनी वाइफ को उससे इंट्रोड्यूस कराता है. नोटिस द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नोटिस कीजिए. प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा. दिस इज द रिस्पॉन्स व्हेन somebody इज इंट्रोड्यूस्ड, ये एक रिस्पॉन्स है जब किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है टू यू, आपसे. अदर एक्सप्रेशंस आर ग्लैड टू मीट यू, प्लीजर मीटिंग यू. मतलब ग्लैड टू मीट यू इसका मतलब भी यही होगा आपसे मिलके अच्छा लगा. प्लीजर मीटिंग यू, इन सब का मीनिंग तो वही है, पर दीज आर नॉट फुल सेंटेंसेस बट फ्रेजेस. ये फुल सेंटेंसेस नहीं है बट फ्रेजेस हैं ये. आई एम प्लीज्ड, मतलब ऊपर वाले तो फुल सेंटेंस हैं, लेकिन आई एम प्लीज्ड, ग्लैड टू मीट यू, इट इज अ प्लीजर मीटिंग यू वुड बी इम्प्लाइड सेंटेंस. अब नेक्स्ट, वेल आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ. आई जस्ट केम टू आस्क यू मिसेस धवन एंड गौतम, मैं आपसे सिर्फ पूछने आया हूँ मिसेस धवन और मिसेस गौतम. सोनाली इज द नेम, सोनाली मेरा नाम है. तो द विजिटर सिग्नल्स दैट द विशेस टू लीव द वर्ड्स वेल आई एम इन हरी. इसमें जो विजिटर है वो जाने के बारे में सोच रहा है या फिर जाने के बारे में सोच रहा है वेल आई एम इन अ हरी, और वो एक जल्दी में है. He, all right, I should. He begins stating the purpose of the visit when Bob interrupts him, commanding him to drop the formality
with his wife and address her by her first name. He begins stating the purpose of his visit. अब वो बताता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, अपने आने का पर्पस बताता है. When Bob interrupts him, commanding him to drop the formality. अब वो फॉर्मेलिटी कर रहा है उसको ये बताकर कि हम यहाँ क्यों आए थे. फॉर्मेलिटी with his wife and address her by her first name. अब उसके फर्स्ट नेम से उसको बता रहा है. All right, I should be delighted if both you and Gautam could come to my party next Saturday. All right, ठीक है. I should be delighted. मुझे बहुत अच्छा लगेगा या फिर अच्छा, if you both, आप दोनों, गौतम, आप और गौतम could come to my party next Saturday. आप मेरे घर पर पार्टी में आओ नेक्स्ट सैटरडे को. तो नेक्स्ट बॉब इनवाइट बैरी. अब बॉब जो है वो बैरी को इनवाइट कर रहा है एंड उसकी वाइफ को फॉर द पार्टी के लिए. आई शुड बी डिलाइटेड. अदर एक्सप्रेशंस कुड बी, अभी अदर एक्सप्रेशंस हो सकता है. आई वुड बी लवली इफ, इट वुड बी ग्रेट इफ, मतलब ये बहुत अच्छा होगा या फिर लवली होगा और ये ग्रेट होगा इफ. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट सोनाली. यू सी, मैं सोनाली के बारे में श्योर नहीं हूँ. यू सी, शी मे हैव टू विजिट हर एलिंग आंट. उसको अपने आंट के घर जाना है दैट इवनिंग, उसी शाम को. सर स्लाइड करना. I'm not sure about Sonali. You see, she may have to visit her ailing aunt that evening. अब मैं सोनाली के बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि उसको उसी सेम इवनिंग को उसके आंट के घर जाना है. एंड गौतम्स अवे एट इलाहाबाद, बट आई विल कम. और गौतम को इलाहाबाद, बट मैं आऊंगा. दिस इज द वे इन विच वन कुड एक्सक्यूज oneself. ये एक तरीका होता है कि हम अपने आप को एक्सक्यूज या फिर सॉरी मतलब किसी चीज के लिए मना कर सकते हैं. एंड एल्स एक्सेप्ट एन इनविटेशन, मतलब किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के अलावा. आई एम सॉरी माई आंट हैज नॉट बीन कीपिंग टू वेल लेटली. आई एम सॉरी, मेरी आंट बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहती हैं. थोड़ा उसने लेटली बोला. अपोलोजाइज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. अब उसने उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया आने से, तो उसके लिए वो सॉरी बोल रही है कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया या आने से मना कर दिया. व्हाट अ पिटी, आई होप शी गेट्स वेल सून. क्या बात है, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपकी आंट जल्दी से अच्छी हो जाए. पोलाइट रिस्पॉन्स, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से या फिर प्यार से बोला कि आपकी आंट ठीक हो जाए. अ रिवर विद 3 बैंक्स, ये सर नॉवेल का नाम है शायद. जी, जहाँ से बुक लिया जाता है ना तो उनको थोड़ा Yes, सा sir. क्रेडिट सही दिया है. जाता है. जी जी, ये भी रीड, शिवानी जी ने इसको पूरा रीड कर लिया है. Okay, sir. Can I explain? जी हाँ, यस. Here are some ways of leave taking. अब यहाँ पे कुछ मतलब निकलने का, लीव टेकिंग या फिर वहां से जाने का तरीका बताया है. नोटिस द पोलाइट रिस्पॉन्सेज. आप उनके पोलाइट रिस्पॉन्सेज को नोट कीजिए बाय द होस्ट, जो कि होस्ट के गए हैं. ही हैजंट कम येट, वो यहाँ पर नहीं आएंगे. आई थिंक आई शुड लीव, अब हमें जाना चाहिए. सो डू सिट फॉर अ लिटिल वाइल मोर, आप थोड़ी देर और बैठ जाइए. यू हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग, आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा. ही शुड बी बैक एनी मिनट, वो कभी भी वापस आ सकते हैं. आई कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक के लिए मंगा सकता हूँ. नो थैंक्स, नहीं रहने दीजिए. डिड ही नो यू वर कमिंग, क्या आपको पता है वो आ रहे हैं. नो आई थॉट वुड टेक अ चांस, आई विल गो नाउ. नो आई थॉट आई वुड टेक अ चांस, हमें चांस नहीं लेना चाहिए, फिर हमें जाना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए. ओह आई विल टेल हिम यू केम, आपको मैं बता रहा हूँ कि वो आएगा. वुड यू लाइक टू राइट डाउन अ मैसेज, क्या आपको उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना है. नो आई विल कॉल लेटर, हम बाद में कॉल कर लेंगे. थैंक्स, आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे निकलना चाहिए. इट्स गेटिंग लेट, बहुत लेट हो गया है. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है. यस यस, होप यू गेट वेल सून, कि आप बहुत अच्छे से ठीक हो जाओ. थैंक्स फॉर कमिंग टू सी मी, थैंक्स यहाँ आने के लिए और मतलब थैंक्स.
नाइस एक्सप्लेनेशंस बाय उपासना जी। उपासना जी ने बहुत अच्छे से आपको दिखाया उसमें कन्वर्जेशंस में एक पर्सन किस तरीके से इनवाइट करते हैं, दूसरा एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना, रिजेक्ट मतलब डिक्लाइन करना, और फिर लीव लेना, ये सारी चीजें अच्छे से आपको इसमें समझ में आ गई होगी। एक्सटेंडिंग इन्विटेशंस, एक्सेप्टिंग डिक्लाइनेशंस, इन्विटेशन, टेकिंग लीव। तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज, ये स्किल्स, देखो हम जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है वही स्किल्स के ऊपर है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, बट उसके साथ साथ आपको कुछ स्किल्स भी आपने देखी इसमें कि नॉर्मल आप भी रिप्लेस करके उस आप खुद से माइंड से भी आपको लगता होगा हम कुछ भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे कितनी पोलाइटनेस और जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ किस चीजों का ध्यान रखा जाता है, कुछ फॉर्मेलिटीज का भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है इन्होंने किस तरीके से कुछ फॉर्मेलिटीज का भी हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आई शुड बी डिलाइटेड कुछ भी तरह जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब मैंने जो बातें बोली हैं वो आपको ध्यान में होगा, क्योंकि हम सीधा डायरेक्टली नहीं जाते, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं। ग्रेड द फॉलोइंग वेल, आई थिंक अच्छा, आपने ये 6 यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा बहुत फॉर्मल लग रहा है आपको, कौन सा इनफॉर्मल लग रहा है। बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है, ये चीज इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर, ट्राई कर सकते हैं। हम्म, सर करें ट्राई एक बार। हाँ बताएं। उपासना जी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, चलिए ओके। वो रैंक 1 2 3 4 लिखना है, ठीक है, बताइए 1 2 3 किसको लिखे। सर मतलब इनको सीक्वेंस में लगाना है? 1 से लेके 6 तक लिखना है, लेकिन आपको देख के बात करने से पता लगता है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट हाँ करता हूँ मतलब तो यस कौन सा सर, मतलब फॉर्मल है। सीक्वेंस में लगाना है ना, कि फर्स्ट कौन सा सेंटेंस आएगा या फिर जी जी, हाँ सेकंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो जितना फॉर्मल लगेगा उसको 1 रैंक पे, जितना कम फॉर्मल लगेगा उसको रैंक 6 पे। ओके सर। सर एक बार ऐसे रीड कर लेते हैं फिर जी, करेंगे। वेल आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। दैट वॉज अ प्लीजेंट इवनिंग इंडीड। ये वो बहुत प्लीजेंट इवनिंग थी, बहुत अच्छी इवनिंग थी। थैंक्स, गुड नाइट। इट वॉज नाइस स्पेंडिंग टाइम विद यू, सी यू सून। आपके साथ जो टाइम गुजरा वो बहुत अच्छा था। आपसे दोबारा मिलेंगे। वेल थैंक्स फॉर द ग्रेट टाइम। इस अच्छे टाइम के लिए थैंक्स। लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग मोर सच ओकेजन्स। अब हम आगे भी सोचेंगे, मतलब साथ में ओकेजन्स काफी स्पेंड करने के लिए। बाय देन, होप टू सी यू सून। जल्दी मुलाकात होगी, बाय। मे आई टेक लीव फॉर नाउ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सी यू। इसमें सर सेकंड वाला इनफॉर्मल होगा। हाँ तो इसमें उन्होंने देखिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने। देखिए आप उपासना जी, जैसे आपने सेकंड सेंटेंस रीड किया, ठीक है, Yes, मैं सारे मैंने को जो फॉर्मल लगे और जो थोड़े से इनफॉर्मल लगे, मैंने थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग रैंक करी थी। अब आप Yes, बताएं, जैसे सेकंड है, ये तो फॉर्मल लग रहा है तो ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसमें से सी यू है ना, टू द पॉइंट yes, जब हम sir. बात करते हैं तो हम जब लंबा सेंटेंस बोलते हैं ना, स्पेंडिंग मच मोर ओकेजन, ये इसका मतलब इनफॉर्मल में होता है। ठीक है, जब हम Yes. लिमिटेड वर्ड बोलते हैं तो बाय देन होप यू सून, ये भी फॉर्मल, ये भी ऊपर रहेगा। मैं टेक Okay, यू, sir. ये तो रैंक 1 लगती है मेरे को। ठीक है, सर जो फ्रेजेस होंगे वो फॉर्मल में आ जाएंगे। हाँ इसको तो रैंक और 1 लिख दीजिए। मैं आई टेक लीव यू नाउ, मतलब इस तरीके से जो बात कर रहे हैं ना, ये रैंक 1 है। ठीक है, ये रैंक 2 हो सकता है। ठीक है, yes, तो sir. ऐसा नहीं कि आपको जब लैंग्वेज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही होगा, बट ये 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, ये 5 कर लीजिए, ये 6 कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 to 6 लिखना है। Okay, वैसे भी 7 है ये, yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंस है, आपको 1 to 6 7 इस तरीके से रैंक करने थे। राइट, तो अभी हम क्लास को यहाँ पे स्टॉप करें, कल कंटिन्यू करें बाकी। कुछ और वर्क Okay, प्रैक्टिस sir. भी है, इसको भी हमने करना है। उसके बाद हम स्मॉल टॉक्स, ये हम इसमें सब्जेक्ट लेके आएंगे कि टॉकिंग अबाउट वेदर के बारे में बातचीत करना, स्टडी करना, कन्वर्जेशन करना है, सारी चीजें हैं ये। ठीक है, Okay, sir. पर्सनल मैटर्स डिस्कस करना है, सब चीजें इसमें। ठीक है, सर वो तो इनफॉर्मल में आ जाएगा। हाँ इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल ही है जो टॉपिक है ना आपका, इस सब्जेक्ट का ही नाम इनफॉर्मल है। लेकिन इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस, यानी कि फेस टू फेस जो हम बात करते हैं इंटरफंक्शनल, और इनफॉर्मल जो बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, इसमें आपने देखा होगा जो रीडिंग, राइटिंग, इनविटेशन, एक्सेप्टिंग, ये सारी चीज इनफॉर्मल, ओरली ज्यादातर इनफॉर्मल में हमने पढ़ा था। इनफॉर्मल जब कम्युनिकेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जनरली ओरल होता है, और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो जनरली रिटन में ज्यादा होता है।
उसमें लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, जीमेल राइटिंग के थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। वैसे इनफॉर्मल भी हो सकता है, वैसा कम्युनिकेशन भी राइटिंग में हो सकता है, फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी ओरल हो सकता है, बट मैक्सिमम जनरली देखा जाता है वो वैसे। ठीक है, चलिए अभी हम यूनिट हमारा 1 है, ये ब्लॉक 2 का हमने अभी यहाँ पर इसको स्टॉप किया है, कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।